Hello everyone. Today I bring for you a new chapter, Structural Organization in Animals. Previously we have done the chapter Anatomy of Flowering Plants, where we have solved 41 questions which are coming in the previous 10 year in NEET exam. And now we also do some 42 questions in this chapter, and all questions are very much important because they are coming in the previous 10 year NEET exam. So without any delay, let's start the first question. The cockroach is. Cockroach क्या है? Here, cockroach is a eurycotelic animal. Okay? Cockroach is a eurycotelic animal. Clear? Explanation की बात करेंगे. Now, cockroach are eurycotelic organisms. The nature of the nitrogenous waste excreted can be species specific and is often influenced by the organism's environment and water availability. That's why cockroaches are eurycotelic animals. Okay? Second, दो स्टेटमेंट दिया गया है, देखो अच्छे से. स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? In cockroach, the forewings are transparent and prothoracic in origin. ओके. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इन कॉकरोच द हाइंड विंग्स आर ओपेक्यू लेदरी एंड मेजोथोरासिक इन ओरिजिन. यहां पर क्या हुआ ना, दोनों के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है. ठीक है, क्योंकि इसने यहां पर उल्टा कर दिया है. अब एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं. देखो, the first pair of wing, forewing or also called tegmina, are not transparent and prothoracic in origin as stated in the statement 1. Instead, they are opaque, dark, leathery and originate from the mesothorax. So, मैंने कहा था भाई दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर उल्टा कर दिया है. फोरविंग की जगह हाइंड विंग लिख दिया है और हाइंड विंग की जगह फोरविंग लिख दिया है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया. क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैचिंग पूछ रहा है. देखो, मैचिंग पूछा है तो कॉलमनर एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम. यहां पर लिस्ट 2 में दिया गया है डक्ट ऑफ प्लांट्स, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड एंडोथेलियम. मैचिंग करते हैं. देखो, कॉलमनर एपिथेलियम कहां होता है? ऑप्शन सेकंड, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन. सिलेटेड एपिथेलियम, इट इज फाउंड इन द inner lining of the bronchioles. Squamous epithelium, it is found in the endothelium, and cuboidal epithelium, duct of the glands. तो इसके हिसाब से आंसर 2341 ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर. एक्सप्लेनेशन को समझो. columnar epithelium, now this type of epithelium consists of tall, slender and column like cells. It is found in the inner lining of the stomach and intestine, where it aids in secretion and absorption. Ciliated epithelium, these are typically columnar or cuboidal cells that have cilia, small hair-like projections on their surface. These are usually found in the bronchioles and in the fallopian tube in females. The cilia help to move mucus and other substances. Third, squamous epithelium. Squamous cells are thin, flat, similar in shape to fish scale. This type of epithelium form the endothelium, that is the lining of the heart, blood vessels, lymphatic vessels. Fourth, cuboidal epithelium. These cells are cube shaped and are most commonly found in the duct of glands and kidney tubules, where they assist with secretion and absorption. So this is your explanation. Now coming to question number 4. Again statement पूछ रहा है. देखो, ligaments are dense irregular tissue. Ligaments are dense irregular tissue. Okay, correct है ये आंसर. Cartilage is dense regular tissue. ये स्टेटमेंट गलत हो गया. तो 1 is correct but statement 2 is false. Option A will be your answer.
cartilage is a type of specialized connective tissue that is not classified as dense. Okay, so statement 1 correct है यहाँ पर. Ligaments are dense irregular tissue, but cartilage is not. Next, question number 5. मैचिंग पूछ रहा है, देखो. मैचिंग पूछा है. मास्ट सेल, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल, ब्लड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, सिलेटेड एपिथेलियम, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, क्यूबिडल एपिथेलियम, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. तो यहां पर मास्ट सेल क्या होता है, ये किससे बना है मास्ट सेल? इट इज मेड अप ऑफ ciliated epithelium, inner surface of bronchiole, inner surface of bronchiole किससे बना है ये? सीधा सीधा है, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू. blood is a special connective tissue, tubular part of nephron, cuboidal epithelium. इसके हिसाब से आंसर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर. ओके, एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे. मास्ट सेल, these are a type of white blood cell that is a part of immune system. Inner surface of bronchiole. The bronchioles are small airway in the respiratory tract that leads to the alveoli. Blood, it is a specialized type of connective tissue. Tubular part of nephron. Now, nephron are functional unit of the kidney, responsible for filtering blood and creating urine. ये था आपका explanation. Question number 6. In cockroach, excretion is brought about by. In cockroach, excretion is brought about by. ऑप्शंस देखो, ए बी सी डी ई करके ऑप्शंस है आपके सामने. और इनमें से क्या क्या है देखो ना. यहां पर आपका आंसर होगा यूरिकोस ग्लैंड, नेफ्रोसाइट एंड फैट बॉडी. ये तीनों बी सी डी आपका आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. एक्सप्लेनेशन सबके बारे में देखते हैं. पहले आंसर की बात करेंगे, उसके बाद जो आंसर में नहीं है ए और ई के बारे में डिस्कस करेंगे. पहला, यूरिकोस ग्लैंड. इन कॉकरोचेस द यूरिकोस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन. इट इज ए टाइप ऑफ एक्सक्रीटोरी ग्लैंड दैट हेल्प्स इन द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. Nephrocytes are specialized cells in the cockroach's Malpighian tubules that play a crucial role in excretion. Malpighian tubules are the primary excretory organ in insects. थर्ड हमारा आंसर था जो फैट बॉडी. The fat body in insect has various functions including energy storage. It is not directly involved in the excretion, but indirectly it plays an important role in excretion. So here B, C, D means uricose gland, nephrocytes, fat body. It is your answer. Now, phallic gland. What is the work of phallic gland? The phallic gland is in male cockroaches is associated to the reproductive system and is not involved in the excretion. And collateral glands. Collateral glands in cockroaches are associated with the female reproductive system and play an important role in the formation of ootheca, that the egg case, but they are not in excretory structure. ये था आपका एक्सप्लेनेशन और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया. ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है. 7 की बात करेंगे. 2023 का सवाल है ये. Which the following is characteristic feature of cockroach regarding sexual dimorphism? मीन्स मेल और फीमेल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं. तो यहां पर क्या होगा,
आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, डार्क ब्राउन बॉडी कलर एंड अनल सर्सी। Anal style are present in male cockroaches and absent in female cockroaches. That's why D will be your answer. Question number 8. Which is the following type of epithelium is present in the bronchioles and fallopian tube? किस तरह के एपिथेलियम पाया जाता है? अभी हमने सॉल्व किया था इसका, बहुत ही सिंपल है। इनमें सिलिएटेड होता है ना, सिलिया होता है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, मूवमेंट में हेल्प करता है। सो आंसर क्या होगा 8 का? सिलिएटेड एपिथेलियम। ओके, ऑप्शन नंबर डी। 9, अगेन मैचिंग पूछा गया है, पहले मैच कर लेंगे फिर ऑप्शन की तरफ आएंगे। देखो, क्रॉप प्रोवेंट्रिकुलस, हेपाटिक केसी, मालपिगियन ट्यूबल्स। लिस्ट 2 में दिया गया है ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल, सिक्रेशन डाइजेस्टिव जूस, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, स्टोरेज ऑफ फूड। पहला क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 9 है। देखो, क्रॉप का काम क्या होता है? नाइट यूज इन स्टोरेज ऑफ फूड, रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। प्रोवेंट्रिकुलस का काम क्या होता है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल। हेपाटिक के सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। मालपिगियन ट्यूबल्स रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट इज एक्सक्रीशन में हेल्प करता है ये। सो ऑप्शन इसके सबसे आंसर कौन सा होगा ना? ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। बी आपका आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 2022 का सवाल है ये, करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। देखो अभी ABCDE करके 5 स्टेटमेंट दिया गया है और यहां पर मोर देन 1 आंसर है आपका, तो अच्छे से चूज करना। पहला, बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। बिल्कुल करता है भाई, बोन ही तो है जो कि सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्शन देता है, ऑर्गन्स को देता है। बी, वेट बेरिंग फंक्शन सर्व्ड बाय लाइन बोन्स। ओके, लाइन बोन्स ही के ऊपर जिम्मेदारी होती है हमारी बॉडी के पूरे वजन को उठाना। सी, लिगामेंट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। गलत। एडिपोज टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। यस, फैट को स्टोर करता है ये। टेंडन्स अटैच वन बोन टू अनदर। टेंडन थोड़ी बोन टू बोन अटैच करता है, वो तो लिगामेंट होता है। टेंडन का काम क्या होता है? मसल टू बोन अटैच करता है ये। सिंपल क्वेश्चन, तो गलत हो गया ये। तो आंसर हमारे पास क्या है? ए, बी एंड डी। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11, excretion in cockroach is performed by all except। कौन नहीं करता? अभी हमने सॉल्व किया था, उसमें क्या क्या था? यूरिकोस ग्लैंड था, मालपिगियन ट्यूबल्स था, फैट बॉडी था, बट हेपाटिक केकी नहीं था। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये सारे करते हैं ये सब, ठीक है, पर इसका कोई रोल नहीं होता। तो इसका रोल कहां पर होता है ना, देखते हैं अभी। Hepatic cake are responsible for the secretion of digestive juices in cockroach and it does not participate in excretion. While the uricose gland, Malpighian tubules and fat bodies all are considered in the excretory structure. Next, question number 12. In the following animal digestive tract has additional chamber like crop and gizzard. Crop और gizzard किस में होता है? वही एप्स में पाया जाता है, बर्ड्स में पाया जाता है। तो इनमें से किस में बर्ड्स है? पूरा कर्वस, कोलंबिया, चैमेलियन नहीं, बुफो, बालेनोप्टेरा, बेनगारुस, काटला, कोलंबिया, कोलंबा क्रोकोडिलस नहीं, पाबो, सिटाकुला एंड कॉर्वस। डी ऑप्शन। पाबो का मतलब क्या होता है? पिकॉक।
सिटाकुला पैरोट, कॉर्वस क्रो, और कोलंबा क्या होता है, पिजियन। सो इनमें पाया जाता है ये क्रॉप एंड गिजार्ड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेगमिना इन कॉकरोच एराइजेस फ्रॉम, टेगमिना किस जगह से एराइज होता है ये ना, यहां पर आंसर होगा आपका क्या, अभी हमने सॉल्व किया था, एक्सप्लेनेशन में बताया था मैंने, मेसोथोरैक्स। ओके, टेगमिना और 4 विंग्स, द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स इन कॉकरोच एराइजेस फ्रॉम मेसोथोरैक्स। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। अगेन मैचिंग पूछा है, पहले मैचिंग कर लेंगे, उसके बाद ऑप्शन की तरफ आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, तो देखो, ब्रोंकियोल्स, बार बार रिपीटेडली आ रहा है ये, ब्रोंकियोल्स, सिलेटेड एपिथेलियम, goblet cell, goblet cells are glandular tissue, tendons, tendons क्या है, tendons are dense regular connective tissue, adipose tissue is loose connective tissue. So 4 3 1 2, 4 3 1 2, option A, sorry, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। ओके, एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। देखो, सिलेटेड एपिथेलियम इज मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ hollow organ like bronchioles and fallopian tube. The function is to move particles or mucus in the specific direction over the epithelium. Some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium. Goblet cells are unicellular glands. Tendons are dense regular connective tissue. They attach skeletal muscles to bone. Adipose tissue is a type of loose connective tissue located mainly beneath the skin. The cells of this tissue are specialized to store fat. तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Which the following characteristics is incorrect with respect to cockroach? इनकरेक्ट बतानी है, ध्यान रखना है इसे, इनकरेक्ट। ओके, देखो, पहला, हाइपोफारिंक्स लाइज विद इन द कैविटी एनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट, ये आपका करेक्ट है। इन फीमेल 7-9 sternum together form a genital pouch, बिल्कुल सही। 10th abdominal segment in both sexes bear a pair of anal cerci, ये भी ठीक है। A ring of gastric caeca is present at the junction of midgut and hindgut, ये स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। ओके, सो डी इज द इनकरेक्ट वन। 17 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। देखो, which the following statement is wrongly represent the nature of smooth muscle, गलत बताया गया है। पहला, they are involuntary muscles, बिल्कुल, स्मूथ मसल्स तो होते ही involuntary muscles। communication among these cells performed by intercalated disc, इंटरकैलेटेड डिस्क स्मूथ मसल में नहीं होता भाई, मिल गया आपको रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड, दिस मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, बिल्कुल होते हैं। दिस मसल्स हैव नो स्ट्रेशन, नॉन स्ट्रेटेड भी कहा जाता है ना इनको, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, तो स्ट्रेशन नहीं है इनपे। तो ऑप्शन बी हो गया आपका रॉन्गली स्टेटमेंट स्मूथ मसल्स के लिए। तो ये दिया गया है इंटरकैलेटेड डिस्क, ये कहाँ होता है फिर ना, दिस टाइप ऑफ डिस्क इज प्रेजेंट इन द कार्डियक सेल, कार्डियक सेल में पाया जाता है, ना कि स्मूथ मसल्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प्स टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द टिश्यू एंड फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल्स बाय रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो,
कौन सा है? 18 पहला टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन रेस्पेक्टिवली, और यही आपका हो गया आपका पहला ये आंसर हो गया ये। अडरिंग जंक्शन एंड टाइट जंक्शन गलत, अडरिंग एंड गैप जंक्शन गलत, गैप अडरिंग जंक्शन गलत। टाइट जंक्शन helps to stop the leakage of the substance across cell tissue. Gap junction facilitates the communication with neighboring cells by rapid transfer of ions and molecules. So option A is the correct one. Question number 19, 2021 का क्वेश्चन है ये। Following are statements about प्रोस्टोमियम ऑफ ऑर्थवर, प्रोस्टोमियम ऑफ ऑर्थवर, और इनमें से करेक्ट ऑप्शन बतानी है। प्रोस्टोमियम के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया गया है और मोर देन 1 आपका यहाँ पर ऑप्शन में भी पूछा गया है, तो अच्छे से समझो इसको। It serves as a covering for mouth. Okay. ये ठीक है, covering for mouth है। It helps to open crack in the soil into which it can crawl. बिल्कुल ये भी हेल्प करता है। It is one of the sensory structure, ये भी ठीक है। It is the first body segment, ये गलत हो गया, wrong statement आ गया। Okay, so A, B, C are correct. So option D will be your answer. Explanation की बात करेंगे। Prostomium serve as a covering for mouth, helping the opening of crack in the soil into which it can crawl and sensory structure. But it is not the first body segment. तो ऑर्थवन का फर्स्ट बॉडी सेगमेंट क्या है? उसका नाम है पेरिस्टोमियम, नॉट प्रोस्टोमियम। उसका नाम क्या है? पेरिस्टोमियम इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, याद रखना है इसे। क्वेश्चन नंबर 20, क्यूबोइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविली इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है ये? डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड? नहीं। प्रोक्सिमल कन्वर्टिबल ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी में होता है क्या? क्यूबोइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविली? बिल्कुल हाँ, बी विल बी योर आंसर। यूस्टाचियन ट्यूब, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, गलत। ओके, सो बी आपका आंसर है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। माइक्रोविली कैन बी फाउंड इन द क्यूबोइडल एपिथेलियम ऑफ द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूबल पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी। 21, if the head of a cockroach is removed, it may live for a few days because, कॉकरोच को हेड को निकाल दोगे तब भी वो कुछ 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। कैसे? ऑप्शंस पढ़ो और आंसर बताओ। द कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम, ऐसे कैसे नहीं है, गलत हो गया ये। द हेड होल्ड्स ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ए नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, यह हो गया आपका आंसर। हेड के पास कुछ पोर्शन का नर्वस सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो हेड निकलने के बाद भी बाकी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसके हिसाब से वो खुद को अलाइव रख पाता है। द हेड होल्ड्स ए 1/3 ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट सिचुएटेड अलोंग द डोर्सल पार्ट ऑफ द इट्स बॉडी। नहीं, वेंट्रल में होगा, गलत हो गया। द सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया ऑफ द कॉकरोच आर सिचुएटेड इन द वेंट्रल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। आंसर क्या होगा? ऑप्शन B will be your answer. A portion of the nervous system located in the cockroach's head, while the rest is located along the ventral region of its body. As a result, even if the cockroach's head is removed, it can live up to for a week. Question number 22. 2020 का सवाल है ये। Goblet cells of alimentary canal are modified from, goblet cells of alimentary canal are modified from, कैसे modified है ना? आपका पहला ही ऑप्शन columnar epithelial cells। Explanation: goblet cells in the alimentary canal
mucosal epithelium releases mucus that aids in lubrication. These are made from columnar epithelial cells that have been modified. So A is the correct answer. In cockroaches, identify the part of foregut in correct sequence. प्रॉपर सीक्वेंस में बतानी है. ओके, पहला माउथ क्रॉप, गलत हो गया, माउथ के बाद क्रॉप नहीं आएगा. दूसरा माउथ की जड़, गलत. माउथ फारिंग्स इसोफागस क्रॉप की जड़, उल्टा करो थोड़ा सा. माउथ माउथ फारिंग्स इसोफागस क्रॉप की जड़, ये आपका करेक्ट आंसर है. डी गलत है. ओके, माउथ फारिंग्स इसोफागस क्रॉप की जड़, इस पैटर्न में होता है फोरगट. द माउथ ओपन्स into a short tubular pharynx which leads to the esophagus, a tiny tube conduit. This expands into a sac-like structure called a crop, which is used to store food. Gizzard or proventriculus comes after the crop. Okay, so C is the correct answer. Next, question number 24. Matching the following reference cockroach and select the correct answer. ज़्यादा क्वेश्चन कॉकरोच से पूछ रहा है. देखो, हाँ, कॉलम 1 कॉलम 2. ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल, ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल कौन करता है इससे? अभी हमने देखा, गीजर्ड का दूसरा नाम क्या नाम है? प्रोवेंट्रिकुलस. प्रोवेंट्रिकुलस, द गीजर्ड आल्सो नोन एज प्रोवेंट्रिकुलस, अभी हमने बताया आपको. सो क्या होगा? 1 का 3 हो जाएगा. और पहले 3 कौन है? ऑप्शन डी है, आंखें बंद करके लगा दो इससे. सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, हेपेटिक के 10 पेयर स्पिराकल्स, अनल सर्सी 10 सेगमेंट. हो गया आपका आंसर ऑप्शन डी. एक्सप्लेनेशन, द गिजर्ड इज ऑल्सो नोन एज प्रोवेंट्रिकुलस, एड्स इन द क्रशिंग ऑफ द फूड पार्टिकल. At the foregut midgut junction, hepatic cavity can be found. The cockroach's 10th segment bears a pair of jointed filamentous known as anal cerci in both sexes, male and female. Cockroaches has 12 pair of alveolar muscles that are connected to the heart and circulatory system. The respiratory system is made up of a network of trachea that opens through a 10 pair of small opening on the body's lateral side called spiracles. So ये था आपका एक्सप्लेनेशन सबके लिए. नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर. Select the incorrectly matched pair of the following. Incorrectly matched pair. ओके, देखो, न्यूरॉन्स नर्व सेल कहलाता है, ठीक है. फाइब्रोब्लास्ट एरियोलर टिश्यू, ये भी ठीक है. ओस्टियोसाइट्स बोन सेल्स, ये भी ठीक है. कॉन्ड्रोसाइट्स स्मूथ मसल सेल्स, गलत हो गया. ओके, सो डी इज द रॉन्ग वन, इनकरेक्टली मैच्ड. एक्सप्लेनेशन, cartilage's intercellular substances is solid and liable and is resist compression. These tissue cells, chondrocytes, are encased in small cavities within the matrix that secrete. So D is the correct one. 25 क्वेश्चन नंबर 2019 का सवाल है ये, देखो अच्छे से. सॉरी 26 have तब सॉल्व किया. Ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction. In humans, these cells are mainly present in ciliated epithelial cells. फिर से पूछ रहा है बार बार, और हमारा आंसर वही रिपीटेडली आएगा, ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब. ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर. ब्रोंक्यूल से म्यूकस प्रोड्यूस होता है और फैलोपियन ट्यूब फीमेल बॉडी में से क्या होता है?
जो एग प्रोड्यूस होता है ओवरी से वो ट्रैवल करता है, ओके, और सिलिया उनको वे रास्ता बताता है। नेक्स्ट 27, select the correctly sequence of organs in the alimentary canal of cockroach starting from माउथ से लेके एंडिंग तक, रेक्टम तक पूरा प्रॉपर सीक्वेंस बतानी है, ओके। पहला फारिंग्स, इसोफागस, क्रॉप, गिजर्ड, इलियम, कोलन, रेक्टम। और ये हो गया आपका करेक्ट वन, बाकी सारे गलत हो गए यहाँ पर, ओके। दिस इज द करेक्ट मेथड 27 का। स्टार्टिंग विद द माउथ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉकरोच एलिमेंट्री कैनल इज फारिंग्स, इसोफागस, क्रॉप, गीजर्ड, इलियम, कोलन, रेक्टम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, which the following feature is used to identify male cockroach from a female cockroach? ये भी हमने डिस्कस किया था, देखो। प्रेजेंस ऑफ ए बोर्ड सेप्टम स्टेरनम ऑन 9th एब्डोमिनल सेगमेंट, नहीं। प्रेजेंस ऑफ कॉडल स्टाइल, हाँ ये होगा आपका आंसर बी। 4 wings with darker tegmina, presence of anal cerci. B is the correct one. Explanation: a pair of tiny unjointed anal style, also known as caudal styles, can be found in the 9th sternum of male abdomen, which is absent in female. Next, question number 29. Correct route for the passage of sperm in the male frog. मेल फ्रॉग में करेक्ट रूट क्या है स्पर्म का? देखो, पहला टेस्टिस, बिडर्स कैनल, किडनी, भासा एफरेंसिया, यूरिनोजेनिटल डक्ट, क्लोइका। गलत हो गया। टेस्टिस, भासा एफरेंसिया, किडनी, सेमिनल वेसिकल, यूरिनोजेनिटल डक्ट, क्लोइका, ये भी आपका गलत हो गया। टेस्ट भासा एफरेंसिया, बिडर्स कैनल, यूरेटर, क्लोइका, नहीं। टेस्टिस, भासा एफरेंसिया, किडनी, बिडर्स कैनल, यूरिनोजेनिटल डक्ट, क्लोइका, दिस इज योर आंसर, ओके। स्पर्म इन मेल फ्रॉग माइग्रेट इन द फॉलोइंग मैनर: टेस्टिस, भासा एफरेंसिया, किडनी, बिडर्स कैनल, यूरिनोजेनिटल डक्ट एंड क्लोइका, ओके। डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, which the following structure does not open into the genital chamber of female cockroaches? Does not open into, okay? देखो, a pair of collateral glands, गलत। a single median oviduct, spermatheca, a pair of anal cerci. D is the answer. Explanation: the anterior region of the vaginal pouch contains gonopores, spermathecal pores and collateral glands apparatus. ये था आपका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो क्या नहीं होता? ए पेयर ऑफ अनल सर्सी नहीं होता है, तो डी इज द आंसर। अब देखो यहां पर दिया गया है इनकरेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू फीचर्स प्रेजेंट इन द 3 एनिमल्स, कैरेक्टर और 3 अन्य कॉकरोच और फॉर्म फ्रॉग के बीच में दिया गया है। डेवलपमेंट, कॉकरोच में डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है ना? हाँ, कॉकरोच में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ऑर्थवॉर्म में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है क्या? ऑर्थवॉर्म में तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यहां पर इनडायरेक्ट लिख दिया गया। फ्रॉग में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम कॉकरोच में ओपन है, ऑर्थवॉर्म में क्लोज है, फ्रॉग में भी क्लोज है, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी सरफेस कॉकरोच का ड्राई रहता है, इन दोनों का मॉइस्ट रहता है। आई, कॉकरोच का कंपाउंड ऑर्थवॉर्म में तो बिल्कुल ही एब्सेंट होता है और फ्रॉग में सिंपल होता है आई।
तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए, क्योंकि पूछा क्या इसने? इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो हो गया ना अर्थवर्म का गलत यहाँ पर। सो ये आपका आंसर है ऑप्शन ए। 32, स्मूथ मसल्स आर। स्मूथ मसल्स आर, पहला क्या होते हैं स्मूथ मसल्स? क्या स्मूथ मसल्स इनवॉल्यूंटरी, सिलिंड्रिकल, स्ट्रेटेड है? स्मूथ मसल्स स्ट्रेटेड है ही नहीं, तो ये हो गया गलत। वॉल्यूंटरी, स्मूथ मसल्स वॉल्यूंटरी है क्या? नहीं है, इनवॉल्यूंटरी है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत। इनवॉल्यूंटरी, फ्यूजिफॉर्म, नॉन स्ट्रेटेड, बिल्कुल सही, ये आपका आंसर मिल गया। वॉल्यूंटरी गलत हो गया। ओके, देखो एक्सप्लेनेशन। स्मूथ मसल्स आर referred to as involuntary since they cannot be controlled directly. Smooth muscle fiber have no striation and taper at both end, that is called fusiform. जो फ्यूजिफॉर्म का वर्ड यूज किया गया है, क्या होता है ये ना? स्ट्रेशन तो नहीं है, और दोनों एंड में क्या ये टैपरिंग होता है, नेरो हो गया है, इसको फ्यूजिफॉर्म कहा गया है। ओके, नेक्स्ट वन। इन मेल कॉकरोचेस स्पर्म आर स्टोर्ड इन। मेल कॉकरोचेस में स्पर्म कहाँ स्टोर होता है? क्वेश्चन नंबर 33। स्पर्म स्टोर करने की जगह टेस्टिस नहीं है, वास्ट डिफरेंस भी नहीं है, ये तो रास्ते हैं स्पर्म की ट्रैवल करने के लिए। सेमिनल वेसिकल्स, ये सही आंसर है। मशरूम ग्लैंड नहीं है। ओके, सो सी इज द आंसर। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। स्पर्म आर केप्ट इन सेमिनल वेसिकल्स एंड सीमेंटेड टुगेदर इन स्पर्मेटोफोर व्हिच आर एक्सपेल्ड ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो सेमिनल वेसिकल स्टोर करते हैं स्पर्म्स को। 34 क्वेश्चन नंबर, व्हिच द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरिप्लानेटा अमेरिकाना। इसमें कौन सा फीचर नहीं होता है? ओके, पहला सीजोसिलम एज बॉडी कैविटी, ये तो होता है सीजोसिलम। इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये लग रहा नहीं है। एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एनएचएल ग्लूकोसामाइन, करेक्ट। मेटामेरिकल सेगमेंटेड बॉडी, ये भी करेक्ट है। नॉट पूछा है तो बी है आपका आंसर। एक्सप्लेनेशन, पेरिप्लानेटा अमेरिकाना डज नॉट हैव इंडिटरमिनेट और रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, सो बी इज द आंसर। 35, व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन। लोकेशन के हिसाब से कौन सा करेक्टली मैच है? स्मूथ मसल, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। ओके, इंटेस्टाइन में होता है स्मूथ मसल्स। एरियोलर टिश्यू, टेंडन्स ना भाई, ये तो गलत हो गया। ट्रांसनल एपिथेलियम, टिप ऑफ नोज, ये भी गलत हो गया। क्यूबिडल एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ स्टमक, ये भी आपका गलत हो गया। एक्सप्लेनेशन, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट अंडर द स्किन, स्किन के नीचे होता है एरियोलर टिश्यू, ना कि टेंडन्स के पास। ट्रांसिशनल एपिथेलियम इज फाउंड इन यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, ना कि टिप ऑफ नोज के पास होता है ये। ओके, गलत हो गया। क्यूबिडल एपिथेलियम इज फाउंड इन द ग्लैंड डक्ट एंड ट्यूबुलर सेक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स इन द किडनी, ना कि लाइनिंग ऑफ स्टमक में होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या करेक्टली मैच क्या हो गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, क्योंकि स्मूथ मसल्स आर फाउंड इनसाइड द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। क्वेश्चन नंबर 36, 2015 का क्वेश्चन है ये। द टेरगा, स्टेरना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी आर जॉइंट बाय। टेरगा, स्टेरना एंड प्लूरा किसके साथ जॉइंट है ये ना? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, पहला ही आंसर सही है, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, एक्सोस्केलेटन ऑफ पेरिप्लानेटा अमेरिकाना हैज
firm plates termed sclerates or tergates dorsally and sternates ventrally that are linked to each other by a thin flexible articular membrane in each segment, that is called arthrodial membrane. So option A is the correct one. 37 question number. The body cell in cockroach discharges their nitrogenous waste in the hemolymph mainly in the form of, किस फॉर्म में ये डिस्चार्ज करते हैं? सो आंसर क्या होगा? पहला ही ऑप्शन पोटेशियम यूरेट, इसी फॉर्म में वो डिस्चार्ज करते हैं बॉडी से. एक्सप्लेनेशन: insect including cockroaches excrete nitrogenous waste in the form of soluble potassium urate which released into the hemolymph and taken up by the cells lining in the Malpighian tubules. So A is the correct one, potassium urate. 38 question number. Which the following is not a function of the skeletal system? Not a function of the skeletal system. Storage of minerals, ये है. प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, नहीं है, बॉडी हीट में कोई मतलब नहीं होता स्केलेटल का. लोकोमोशन में है. प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ये भी है. तो बी आपका आंसर है, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट. ओके. एक्सप्लेनेशन: हीट जनरेशन इज लिंक्ड टू रेस्पिरेशन रादर देन स्केलेटल सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 39. Function of the gap junction is 2. Function of the gap junction is 2. Gap junction का फंक्शन क्या है? पहला, facilitate communication between adjoining cells by connecting the cytoplasm for rapid transfer of ions, small molecules and some larger molecules. यही तो है फंक्शन इसका, गैप जंक्शन का. Separate two cells from each other, गलत. Stop substances from leaking across the tissue, नहीं. परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, ये भी नहीं. तो ए आपका आंसर है. ओके. एक्सप्लेनेशन: गैप जंक्शन अलाउड सेल्स टू कम्युनिकेट बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स allowing for the rapid transfer to ions, small molecules and occasionally large molecules. So A is the correct one. Question number 40. Choose the correctly matched pair. Cartilage, loose connective tissue, नहीं, गलत हो गया. टेंडन्स, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये भी गलत हो गया. एडिपोज टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, गलत, ये तो लूज होता है. एरियुलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये सही है. एरियुलर, एडिपोज दोनों लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. ओके. सो डी इज द करेक्ट वन. 41 क्वेश्चन नंबर. चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर. 2014 का क्वेश्चन है ये. चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर. इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स कॉमस एपिथेलियम, गलत. सिलेटेड एपिथेलियम, अभी हमने देखा. इनर लाइनिंग ऑफ सैलिवरी डक्ट, सिलेटेड एपिथेलियम, गलत. मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, गलत. ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबिडल एपिथेलियम, ये सही हो गया, करेक्ट पेयर. ओके. सो डी इज द करेक्ट वन. एक्सप्लेनेशन: क्यूबिडल एपिथेलियम इज द ट्यूबुलर रीजन ऑफ द नेफ्रॉन. कंपाउंड एपिथेलियम covers the moist surface of the buccal cavity and the inner lining of the salivary duct. Ciliated epithelium lines the inner surface of the bronchioles. So D is the correct one. Next question. Select the correct option with respect to cockroaches. Malpighian tubules convert nitrogenous waste into urea. बिल्कुल ही गलत हो गया ये. Male bear short anal style not present in females. बिल्कुल यस, करेक्ट आंसर हो गया आपका. Nervous system comprises of the dorsal nerve cord and 10 pair of ganglia. गलत. 4 wings are tegmina which are used in flight. नहीं, ये भी गलत हो गया. So
B is the correct answer. Explanation: on the 9th abdominal segment, males have paired anal style, while females do not have. Last question: what external changes are visible after the last molt of cockroach nymph? निम्फा स्टेज में क्या बदलाव आता है लास्ट मोमेंट में? देखो क्या होगा, लैबियम डेवलप नहीं, मैंडिबल्स बिकम्स हार्डर नहीं, एनल सर्सी डेवलप नहीं, बोथ फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स डेवलप. ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर. Wing pad are present in the last nymphal stage. However, only adult cockroaches have wings. Okay? इसके साथ हमने इसको कंप्लीट कर दिया. ये सारे क्वेश्चंस ईयर बाय ईयर हमने देखा. अभी किसके साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था नीट के पेपर में. आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा आने वाली पेपर को सॉल्व करने के लिए. सिर्फ नीट के लिए नहीं, आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर सकते हो इस वीडियो को देखते हुए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से ही है, कुछ अलग नहीं है. एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओगे तो इन्हीं में से यही सब क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको. इवन अभी तो ये वाला कॉकरोच वाला पॉइंट तो एनसीईआरटी ने हटा दिया था सिलेबस से, तो पुराने बुक को फॉलो करो. और फिर क्योंकि नीट में से कोई सिलेबस नहीं हटा है, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको देखने को पड़ रहा है. तो पुराने एनसीईआरटी को देखते रहो और ये वीडियोस को देखते रहो. आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा आने वाले टाइम्स में. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को. थैंक यू. जय जगन्नाथ.